Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So third canto, second chapter, 25th and 26th verse today we are going to discuss. But before that, prayers for the glorification of Srimad Bhagavatam. पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभेस्तथा पंचमेव षष्ठो भुञ्जान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्थुराजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्लवल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादशेव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुतावतारम् आपार संसार सामुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं। So Bhagavatam has 10 subject matters. It has been divided in 12 cantos. First two is the preparatory, or you can say Purva Kriya, that is preparation for the subject matters to start. The 10 subject matters in Bhagavatam, that is Sarga, Visarga, Sthanam, Poshanam, Pataiha, Manvantaraishanu, Katha, Nirodho, Mukti, Ashraya. Because we are starting with we are having this third canto subject today. The third canto is speaking about Sarga. Sarga means creation. About the 10 subject matters, it starts with Sarga. Sarga means creation. Fourth canto is Visarga, sub-creation. Atha Sarga Visargascha, Sthanam. Fifth canto is about the Sthanam. Sthanam is the positions which the living entity get in different planetary systems. Sthanam, then maintenance should be there, that is known as Poshanam. The sixth canto speaks about the Poshanam. Then Uttayaha, seventh canto speaks about Uttayaha. Manvantara, eighth canto speaks about Manvantara. Nirodho. Now 10th canto, I think a lot of disturbance is there. Somebody who is the host has to mute the phones of those who is the host here. Hare Krishna Mataji, Gautam Prabhu. Gautam, I think he must be in the roads. Somebody has to become the host there. Gautam is in the roads. He's traveling. Mataji, host is Sri Jagannath Dev Sthanam. Yeah. So you can call Gautam, or you call the concerned person whose mobile is on.
हरे कृष्णा, Sushma दंडवत प्रणाम टू Mishra. ऑल. Sushma Mishra, please mute your phone. Sushma Mishra, mute your phone. Too much of disturbance. Sushma Mishra, mute your phone. अथ सर्ग विसर्गश्च स्थानं विसर्गज स्थानं पोषणं सर्ग विसर्गज स्थानं पोषणं उतयः मन्वन्तर ईशानुकथा. Ishanukatha is the 9th verse. Ishanukatha. Nirodho is the 11th. Mukti is the 12th. And 10th subject matter is Ashraya Tattva. That is the 10th canto, Ashraya Tattva. So about the creation has been spoken in the 10th canto, in the 3rd canto. That is how the subject matter of Srimad Bhagavatam starts. Srimad Bhagavatam is Amala Pramanam. That is what Chaitanya Mahaprabhu says. When he gives his mata, he says, Srimad Bhagavatam is Amala. Amala means there is no contamination. And it is a pramana. Whatever is spoken in Srimad Bhagavatam is as it is. Now, remembrance of Lord Krishna. That is the 2nd chapter. So, 2nd chapter, meeting of Vidura with Uddhava has been given. In the 1st chapter of 3rd canto, we can see that how Vidura goes and advises Dhritarashtra. Because he tells why you're encouraging your son. Your son is actually sin, personification of sin. You are encouraging your son in this way, you are also becoming sinful. And if we see even before those verses also, we can find that how Sukadeva Goswami is glorifying the fortune of Pandavas. And how Krishna behaved like a cousin brother, stayed in their house. Krishna did not go to the house of Duryodhana. What a fortune, Sukadeva Goswami says, what fortune Pandavas had. In this way, he is describing this to Parikshit Maharaj. And then Suta Goswami, Parikshit Maharaj wanted to know what exactly happened after the war, where did the Pandavas go. So all these things Parikshit Maharaj wanted to know more. And Vidura left the kingdom, then what happened? So many inquiries were there with Parikshit Maharaj. So then Sukadeva Goswami is speaking. That conversation is now spoken by Suta Goswami to the rishis of Naimisharanya. That how Sukadeva Goswami is very pleased with the inquiries done by the king, because the inquiries are relating to Krishna. Any topic where Krishna is in the center or relating to Krishna, that topic is completely spiritual. So in this way, answering to the questions which is asked by Maharaj Parikshit, how Sukadeva Goswami is answering, that is now related by Suta Goswami to Shaunakadi Rishi. There, Uddhava meeting Vidura meeting Uddhava, that Sandarbha is also spoken by Suta Goswami to his disciples. Actually, that Sandarbha is related by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. What really happens when the war is about to start? First, Vidura goes and advises King Dhritarashtra. Some cannot understand English, please may you speak in Hindi. I don't think everybody is understanding English here. Okay, some part we can. So जब विदुर गए धृतराष्ट्र के पास गए, विदुर गए और उन्होंने कहा कि आप दुर्योधन को प्रोत्साहन कर रहे हैं, और दुर्योधन जो है ये पाप के भंडार है, तो पाप के प्रतिबिंब भी है, पाप के भंडार भी है, तो आप उन्हें प्रोत्साहन करने से आप भी एक पापी व्यक्ति हो जाते हो, तो उसे आप प्रोत्साहन मत करिए। तो ये जब वाक्य दुर्योधन ने सुना, तब दुर्योधन को आया इतना गुस्सा, इतना क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि इस दासी पुत्र को यहाँ से बाहर निकालो,
विदुर तो दासी पुत्र हैं, वैसे व्यास जी के पुत्र हैं लेकिन है तो दासी पुत्र। तो इस प्रकार से जो शब्द सुने, तीर के समान शब्द, तो विदुर वहां से निकल पड़े और उन्होंने इसे भी भगवान का एक आयोजन करके स्वीकार कर लिया और तीर्थ स्थलों में गए, भगवान का ही स्मरण करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। ऐसे करते करते इस तीर्थ स्थानों में जाते जाते वे आए हस्तिनापुर में। जब हस्तिनापुर से गुजर रहे थे तो उनका भेंट होता है उद्धवा से। उद्धव से भेंट होता है तो अब उनसे रहा नहीं गया, उन्हें भगवान के बारे में और पूछना था। कैसे हैं सब परिवार वाले, कैसे हैं, क्या हुआ युद्ध के बाद, कौन कौन जीवित हैं, ये सब उन्हें पूछना था। अब कैसे पूछेंगे? वैसे भगवान अभी जीवित है, भगवान अभी इस धरातल में अप्रकट हैं या प्रकट हैं, ये सब कैसे पूछेंगे? लेकिन वैसे भक्त जो हैं ये अप्रकट लीला की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, उनका ध्यान रहता है प्राकट्य लीला पे ही चर्चा करना। तो यहाँ उद्धव जो हैं भगवान के बचपन के मित्र भी हैं और उनके चचेरे भाई भी हैं। तो 5 साल की आयु से ही उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति इतना दिखता था कि माँ उनको बुलाती थी खाना खाने के लिए, तभी भी वो बोलते थे नहीं, मैं कृष्ण को छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। इतना प्रेम, और हमेशा भगवान का सेवा करते थे, बचपन से ही सेवा करते थे। तो कहते हैं बुढ़ापे में भी उन्हें भगवान की सेवा करने में ही इच्छा रहती है। वैसे उद्धव जो है एक चिरंजीवी हैं, हमेशा भगवान की सेवा करने में ही उनका ध्यान रहता है। तो यहाँ विदुर जानते हैं कि उद्धव जो है भगवान से बहुत प्रीति करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी सेवा भी करते हैं। इसलिए उनका ये प्रश्न है कि भगवान तो परम पुरुषोत्तम है, कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम है उनके पास तो अनगिनत शक्तियां हैं, वे कौरवों को ऐसे ही मार सकते थे। तो ये युद्ध और इतना सारा संकट, इतनी सारी तनाव, इतना सारा तनाव, ये सब लाने का क्या उनका उद्देश्य था? भगवान स्वयं भी सबको मार सकते थे, चाहेंगे तो पूरे कौरव इस धरती में समा जाते थे। तो ऐसे जब जो आसानी से हो सकता था तो इतना सारा तनाव पांडवों को क्यों हुआ? बल्कि पांडवों को भी हुआ और सबको भी हुआ। इतना सारा तनाव, इतना युद्ध, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? तो वहां उद्धव जी कह रहे हैं, ये प्रश्न है विदुर का। तो यहाँ उद्धव जी भी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि भगवान ने पूरा तनाव मचा दिया है, लेकिन भगवान तो सभी के माँ हैं। तो एक असुर की भी तो माता है, असुरों का भी तो उद्धार होना है। तो उनका उद्धार कैसे हुआ? भगवान ने उन्हें स्वयं मारा, भगवान को देखते देखते वो मरे। स्वयं मारा का अर्थ है भगवान को देखते देखते युद्ध में वो स्वयं, जब भगवान को देखते देखते वो शरीर त्याग रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या सकता है? इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये उनका भाग्य को खोलने के लिए भगवान ने खास करके ये पूरा आयोजन किया है। तो क्योंकि भगवान जो हैं ये दानवों के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है, दानवों के लिए भी। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा भगवान सिर्फ भक्तों के साथ ही है। भगवान भक्तों के साथ तो है ही, ये तो अनिवार्य है, भक्तों के साथ तो है ही। लेकिन उसी समय में भगवान दानवों के विषय में भी सोच रहे, असुरों के विषय में भी सोच रहे। क्योंकि असुर भी जो है भगवान का ही स्मरण करता है, लेकिन कैसे? प्रतिकूल भाव में करता है। हमें प्रतिकूल भाव में भगवान का स्मरण नहीं करना है। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिसति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शरणिदा शरणागति। अनुकूल भाव में ही हमें भगवान का स्मरण करना है, अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल भाव में। लेकिन जो प्रतिकूल भाव में जो स्मरण करता है वो कहते हैं कि वो देवताओं से ज्यादा भी वो स्मरण करता है, लेकिन प्रतिकूल भाव में। जैसे कंस को जहां भी देखता था उसे कृष्ण ही दिखते थे,
तो प्रतिकूल भाव में वो भगवान का स्मरण करता था। भगवान भी क्या करते हैं, उन्हें अवसर देते हैं, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को दिखाते हैं। वैसे भगवान चतुर्भुज स्वरूप में भक्तों के सामने ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि भक्तों को भगवान के जो मधुरिमा स्वरूप है इससे ज्यादा आसक्ति रहती है। जब भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन ने कहा मुझे ये स्वरूप नहीं देखना है, बस देख लिया, मैं कृतज्ञ हूं, देख लिया, अब बस इसे अभी छुपा दो। फिर चतुर्भुज स्वरूप दिखाए तो बोलते ये भी स्वरूप ठीक अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपके द्विज स्वरूप को देखना है। तो इस प्रकार से भगवान जो असुर हैं उनके लिए भी कृपालु हैं। ये 24 के श्लोक में दिया हुआ था। अब 25वें श्लोक को लेंगे। 25-26 है, राइट? 25-26 श्लोक है। तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 25वां श्लोक। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर् भगवानस्य शमजेनाभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर् भगवानस्य शमजेनाभियाचितः। तो वसुदेव जो पत्नी, जो वाइफ ऑफ वसुदेवस्य, वसुदेवस्य यहाँ देवकी कहा है, वसुदेवस्य जो पत्नी है, वसुदेव ने कहा है, वसुदेवस्य कहा है, देवक्यां देवकी के घर में जातः जन्म लिए हैं, भोज इंद्र द किंग ऑफ भोजस, राजा भोज, और फिर बंधने कारागृह में, चिकीर्षः भगवान यहाँ जन्म लेते हैं, कारागृह में जन्म लेते हैं। अस्यः शाम अजेन अभ्यचातः। ब्रह्मा जी ने जाकर याचना किया, और याचना क्यों किया? क्योंकि भूमि देवी, हाँ शायद कोई और को म्यूट कर लेते थे, मुझे ही होस्ट बना दिया है, अब मुझे ये भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास गई भूमि देवी, जाकर रोने लगी, मेरा भार बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्षत्रिय हैं, इम्पायस किंग्स, ऐसे क्षत्रिय हैं जो एकदम पापी हैं, उनके कारण मुझे बहुत भार लग रहा है। इस भार को सिर्फ कृष्ण ही दूर कर सकते। ऐसे भूमि देवी स्वयं भी अपने मुंह को अगर खोल देगी तो सब जितने भी पापी राजा हैं उसके अंदर समा जा सकते थे, लेकिन जानबूझकर वो चाहती हैं कि कृष्ण आए, क्योंकि भूमि देवी भगवान की पत्नी है और उनका विरह उनसे सहन नहीं हो रहा था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? कारण क्या है? जो त्राण है भक्तों का, उसे मिटाने के लिए भगवान आते हैं, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। त्राण, भक्तों का त्राण क्या है? भगवान का विरह, यही भक्तों का त्राण है, इससे अधिक कोई त्राण है ही नहीं। और विनाशाय च दुष्कृतां, जब वो त्राण को मिटाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, भगवान भक्तों के विरह का जो ताप है उसे मिटाने के लिए अवतरित होते हैं, तब जो भी असुर हैं उस समय के, तब भगवान क्या करते हैं? उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है कि असुरों को मारने के लिए मुझे अवतरित होना है। जब भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में अवतरित होते हैं, भक्तों के त्राण को मिटाने के लिए आते हैं। वैसे असुरों को मारने के लिए उनके अनगिनत शक्तियां ही काफी हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान के पास अनगिनत शक्तियां हैं, भगवान को उतरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं और अपने अवतारों में इसलिए आते हैं कि भक्तों के याचना के कारण आते हैं। ब्रह्मा जी ने याचना किया
और याचना ब्रह्मा जी ने भूमि देवी के बिहाफ में उनकी तरफ से किया। ब्रह्मा जी भी चाहते भगवान आए, सभी भक्त चाहते भगवान आए। इस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं और भगवान भक्तों के शब्दों को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भी अर्जुन को, तुम बोलो कि मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होगा, न मे भक्ता प्रणश्यति। यू डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड दैट माय डिवोटीज विल नेवर पेरिश। भगवान स्वयं भी ये वाक्य बोल सकते थे, लेकिन भगवान भक्तों के शब्दों को हमेशा पूरा करते हैं, ये साधु संत जानते हैं। तो साधु वर्ग जब ये जानते हैं कि भगवान भक्तों के शब्द को कभी असत्य नहीं करने देते हैं, इसलिए उनका नाम है सत्यव्रत। इस प्रकार से यहाँ कहा है कि भगवान जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया पूरे जगत के कल्याण के लिए, भगवान स्वयं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर पट दिया है, although there is no difference between the Lord's past tense of appearance and disappearance, the devotees of the Lord do not generally discuss the subject matter of his disappearance. Vidura inquired indirectly from Uddhava about the incident of the Lord's disappearance by asking him to relate Krishna Katha or topics in the history of Lord Krishna. Uddhava began the topics from the beginning of his life, beginning of his appearance as the son of Vasudeva and Devaki in the prison of Kamsa, the king of Bhojas at Mathura. The Lord has no business in this world, but when he is requested by devotees like Brahma, he descends on the earth for the welfare of the entire universe. This is stated in Bhagavad Gita, Paripranaya Sadhunam, Vinashaya cha Dushkutam, Dharma Sansthapanarthaya Sambhavami. Okay. The purpose of Lord's appearance has been given. तो विदुर जो हैं भगवान के अप्रकट लीला के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप में पूछ भी नहीं रहे हैं और स्पष्ट रूप में उद्धव भी नहीं बोल रहे हैं। इंडिया कहा है जब भक्त एक दूसरे से साथ चर्चा करते हैं तो प्रायः क्या चर्चा करते हैं, लीलाओं की चर्चा करते हैं। जैसे भक्त अगर प्रभुपाद की लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं तो कहीं भी प्रभुपाद के अप्रकट के समय क्या क्या हो रहा था वो नहीं चर्चा करते। वो चर्चा करना उनको अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि भक्त और भगवान इनका कभी नाश होता ही नहीं। तो भगवान के अप्रकट लीलाओं का चर्चा भक्त करना नहीं चाहते। इतना तक एक जगह है द्वारका में, उसे देखना भी भक्त नहीं अच्छा, उन्हें वो जाकर देखते भी नहीं। जहां से भगवान अप्रकट हुए उस स्थान देखने के लिए रुचि भी नहीं रखते। लेकिन भौतिक लोग जो होते हैं उनकी रुचि जो है वो सब भगवान के अप्रकट लीला में ज्यादा रहती है। उसी से समझ जाने का ये भक्त है कि ना भक्त है। भक्त भगवान की लीलाओं के विषय में जानने का बहुत उत्सुकता रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ चर्चा करते हुए उद्धव प्रारंभ कर रहे हैं भगवान के प्राकट्य लीला से। किस प्रकार भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट होकर फिर देवकी के हृदय में, देवकी के गर्भ में स्थित हो जाते हैं। इसे ही दीक्षा भी कहते हैं, दिव्य ज्ञान इक्षति दीक्षा। दीक्षा के समय भी गुरु अपने हृदय से कृष्ण को शिष्य के हृदय में प्रकट कराता है। वास्तव में एक दीक्षा ही है। तो वसुदेव जो हैं भगवान के अनन्य भक्त, देवकी अनन्य भक्त, तो भगवान पहले इनके हृदय में प्रकट होते हैं। चतुर्भुज रूप में हृदय में प्रकट होकर यहाँ गर्भ में स्थित हैं। जब गर्भ में स्थित हैं देवकी, वैसे देवकी उनके जब सभी आते हैं उनकी पूजा करते हैं, देवकी को ऐसा लग रहा है कुछ अद्भुत कार्य हो रहा है। वैसे देवकी इतनी प्रज्वलित दिख रही हैं, तभी भगवान स्वयं स्थित है उनके गर्भ में। कितना अहो भाग्य है देवकी का। भगवान स्थित होने के पहले 6 जो बालक हैं उनका हत्या हुआ है, उनको मारा था कंस ने। लेकिन 6 जो हैं ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इसके प्रतीक है।
तो यहाँ कहना चाहते हैं कि भगवान कब किसी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं, जब उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध होता है, जब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। तो भगवान के प्रति प्रेम को कौन जागरूक करते हैं? गुरु, आध्यात्मिक गुरु। इसीलिए भगवान अवतरित होने के पहले बलराम जी अवतरित होते हैं। तो बलराम के कारण ही, बलराम को पूजन करने के बाद ही भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 6 बच्चों को मारने के बाद या 6 अवगुणों को निकालने के बाद स्वयं आध्यात्मिक गुरु की जो प्रतीक है बलराम जी, उसके बाद कृष्ण आते हैं और वसुदेव के गर्भ में स्थित होते हैं। वैसे कृष्ण अजा है, अजा यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान भक्तों के लिए जन्म लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः। उनका जन्म भी और कर्म भी दोनों दिव्य है। कोई साधारण बच्चे जैसे जन्म नहीं लिए, या साधारण बच्चा जो जन्म लेता है तो वीर्य से जन्म होता है, ऐसे जन्म उस भगवान का ऐसा जन्म नहीं हुआ है। तो भगवान 2 कारणों के कारण अवतरित होते हैं। फिर 26वें श्लोक में कहा है, ततो नंदव्रजम इतः पित्रा कंसाद विभीप्यताः एकादश समास्तत्र गूढ़ाश्चिम सबलो वसत्। ततो नंद व्रजम इतः पित्रा कंसाद विबीभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चि सबलो वसत्। ततः फिर क्या हुआ? नंद व्रजम यानी नंद के आंगन में, नंद व्रजम जहाँ गैया चरती हैं, वहां वसुदेव ने उन्हें छोड़ा नंद महाराज के आंगन में। क्यों? कंस से वो भयभीत थे। कंसाद विबीभ्यात का अर्थ है बहुत भयभीत। एकादश समाह, भगवान नंद बाबा के यहाँ कितने साल रहे? 11 वर्ष तक रहे। तत्र गूढ़ अर्चितः सबलः अवसत। तो गूढ़ अर्चितः जैसे जो लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है लेकिन वो अग्नि छुपा हुआ है, उसी तरह से कृष्ण और बलराम व्रज में तो घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसे हैं? अग्नि के ही स्रोत है। लग नहीं रहे हैं अग्नि, एकदम ऐसे लग रहे हैं कि एकदम प्रेम स्वरूप, लेकिन दे आर द कवर्ड फायर। दोनों यहाँ ब्रज भूमि में 11 वर्ष तक रहे हैं। अब ये भी एक प्राकट्य लीला है। वैसे कृष्ण कभी ब्रज को छोड़े ही नहीं। जो कृष्ण आए मथुरा से, वही कृष्ण वापस गए। कृष्ण का जन्म 2 जगह होता है, एक देवकी के गर्भ में होता है, एक यशोदा के गर्भ से होता है। वैसे यशोदा का नाम भी देवकी है, लेकिन यश दिया उन्होंने, यश दान में दिया देवकी को, वसुदेव की पत्नी देवकी को दिया। इसीलिए यहाँ वसुदेवस्य देवकी कहा है। जानबूझकर वसुदेवस्य देवकी इसलिए कहा है क्योंकि यशोदा का भी नाम देवकी है। जो कंस के कारागृह में जो जन्म लिए कृष्ण, वो नारायण स्वरूप कृष्ण है, और जो यशोदा के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम गोविंदा भगवान स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के विस्तार नारायण प्रकट होते हैं वसुदेवस्य देवकी, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से। जब वसुदेव कृष्ण को मथुरा से ले आते हैं नंद बाबा के आंगन में, तब योगमाया की शक्ति के कारण
उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि नारायण स्वरूप कृष्ण अब पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण में समा गए हैं। उन्हें बस वहां क्या दिख रहा है, एक छोटी सी बालिका दिख रही है जो जन्म ली है, और ये रखना है वहां कृष्ण को, और उस बालिका को उठाकर ले आ रहे हैं। तो योगमाया की ऐसी शक्ति के कारण वसुदेव भी भयभीत, ऐसे लग रहा है कि भयभीत हो गए। अब देखिए, भगवान जब प्रकट होते हैं, चतुर्भुज में प्रकट होते हैं वसुदेव और देवकी के पास, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते हैं, फिर भी योगमाया की शक्ति के कारण वसुदेव और देवकी दोनों भयभीत हैं। अब तो उन्हें भयभीत होने का कारण ही नहीं है। वैसे तो आकाशवाणी भी हो गया है कि 8वां जो बालक है वो कंस को मारने के लिए प्रकट होने वाला है। तो पूरा विश्वास भी होना चाहिए कि यही 8वां जो बालक है स्वयं कृष्ण है। भगवान दिखा भी रहे हैं, पूरे पूरे ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य को प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे यशोदा के पास छोटा बच्चा जन्म लिया, रोता हुआ बच्चा, नंगा वंगा बच्चा, ऐसे नहीं जन्म लिए। इतना तक कि जातक जो संस्कार है वो यशोदा का हुआ, देवकी का जातक संस्कार के बारे में कहीं भी नहीं कहा है। जातक संस्कार का अर्थ है बच्चों का जो नाभि होता है, बच्चे का नाभि माँ के गर्भ से कनेक्ट रहता है, फिर उसे काटते हैं। ये जातक संस्कार देवकी का नहीं हुआ, ये जातक संस्कार हुआ कृष्ण का, क्योंकि वहां कृष्ण एक साधारण बच्चे जैसे जन्म लिए, मनुष्य के बच्चे जैसे जन्म लिए। लेकिन यहाँ भगवान दिखा रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। तुम पहले जन्म में तुम लोगों ने, दोनों ने बहुत तपस्या किया, सुतपा प्रश्नी, उस समय तुमने बहुत तपस्या किया, मुझे मांगा, मेरे जैसा बच्चा मांगा, लेकिन मेरे तो और कोई है नहीं, और इसलिए मैं तुम्हारे पास 3 बार प्रकट हुआ हूँ, कृष्ण गर्भ के रूप में, वामन के रूप में, अब यहाँ मैं आपके सामने प्रकट हूँ। इतना बोलने के बाद भी वसुदेव भयभीत है, कंस में मारेगा। तो इसके पीछे भी कारण है। वो कारण यह है कि भगवान व्रज लीला को प्रदर्शन करना चाहते हैं। भगवान पूरी तरह से ब्रज में आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए मार सकते थे कंस को, उसी समय मार सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं मारे। जानबूझकर तो जानबूझकर कृष्ण उस समय नहीं मारे, और पूरे जगत को दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त ब्रजवासी जैसे कोई भक्त है ही नहीं। और इसीलिए वहां चतुर्भुजी कृष्ण अब द्विजभुज में वसुदेव के पास आ जाते हैं, यानी वसुदेव के पास पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं द्विजभुज में, क्योंकि वसुदेव कहता है कि ये चतुर्भुज को छुपा दो भगवान, अब छोटे बच्चे जैसे हो जाओ, क्योंकि आपका ये स्वरूप देखकर कंस आपको वार करेगा। तो ये सब योग माया की शक्ति के कारण ये सब बोल रहे हैं वसुदेव। आप ये 4 हाथों को छुपा दो, अब 2 हाथों में ही रहो, और छोटे बालक जैसे आ जाओ मेरे पास, मेरे गोदी में, और टोकरी में रखकर ले जाते हैं अब नंद बाबा के आंगन में। तो यहाँ पर पट में लिखते हैं प्रभुपाद, देयर वाज नो नेसेसिटी ऑफ द लॉर्ड्स बीइंग डिस्पैच्ड टू द हाउस ऑफ नंद बाबा आउट ऑफ फियर ऑफ कंसस डिटर्मिनेशन टू किल हिम एज सून एज ही अपीयर्ड. It is a business of the asuras to try to kill the supreme lord, or to prove by all means there is no god, or that God is ordinary human being and not God. Lord Krishna is not affected by such determination of men of Kamsa's class, but in order to play the role of a child, he agreed to be carried by his father to the cow pastures of Nanda Baba, Nanda Maharaj, because Vasudeva was afraid of Kamsa. Nanda Maharaj was due to receive him as his child, and Yashodamai was also to enjoy the childhood pastimes of the Lord. Therefore, to fulfill everyone's desire, he was carried from Mathura to Vrindavan just after his appearance in the prison house of Kamsa. He lived there for 11 years and completed all his fascinating pastimes of childhood, boyhood, adolescence with his elder brother Lord Balram. His first expansion
Vasudev's thought of protecting Krishna from the wrath of Kamsa is part of transcendental relationship. The Lord enjoys more when someone takes him as a subordinate son who needs the protection of the father than he does when someone accepts him as a Lord, Supreme Lord. He is the father of everyone and he protects everyone. But when his devotee takes it for granted that the Lord is to be protected by the devotee's care, it is a transcendental joy, the joy for the Lord. Thus, when Vasudeva, out of fear of Kamsa, carried him to Vrindavan, the Lord enjoyed it. Otherwise, he had no fear from Kamsa or anyone else. तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वसुदेव उन्हें ले जाते हैं कंस के आंगन में, तब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक भक्त को ऐसे लग रहा है कि मैं भगवान का रक्षा कर रहा हूँ। वसुदेव को ऐसा भास हो रहा है कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, और वसुदेव कंस के भय से कृष्ण को ले जा रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि कृष्ण को ले जा रहे हैं। वैसे कृष्ण थोड़ी भयभीत है। कृष्ण को कंस को मारने के लिए कितना क्षण लगेगा? सिर्फ सोचने मात्र से ही कंस मर सकता है, लेकिन भगवान सबको अवसर देना चाहते हैं। अब देखिए असुरों को कैसे अवसर देते हैं। असुर प्रतिज्ञा लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ले लो, जितना चाहिए प्रतिज्ञा ले लो मुझे मारने के लिए, और नाना प्रकार की योजनाओं भी बना लो। अगर मुझे मारना ही है तो नाना प्रकार की योजनाएं बनाओ, तो वो भी इच्छा असुरों की पूर्ति करती। ऐसे भगवान को कौन मार सकता है? तो योजनाएं बनाते हैं असुर, और भगवान उसे प्रोत्साहन देते हैं योजनाएं बनाओ। वैसे भी जो नास्तिक होते हैं वो भी योजनाएं बनाते हैं, ये पूरे जगत को दिखाने के लिए कि भगवान है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। भगवान सबको अवसर देते हैं, सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। ठीक है, तुम्हें योजनाएं बनाना है, तुम्हें ऐसे घोषित करना है कि मैं मारूंगा, ठीक है, तुम्हारे गर्व को और बढ़ाना है, बढ़ाते रहो। तो ऐसे गर्व को बढ़ाते रहते हैं, और उनके जितने भी कलमश हैं वो भी बढ़ता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जो है बढ़ता रहता है। मत्सरिता भी बढ़ती रहती है। तो पाप का घड़ा बढ़ा देते हैं भगवान। क्यों? वो तो इच्छा किया है, असुरों ने वैसी इच्छा की, और वसुदेव ने इच्छा क्या किया? भगवान अब चतुर्भुज कुछ पालो, अब द्विज में रहो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रक्षा कर रहा हूँ भगवान का। तो भगवान ये देखते हैं कि भक्त मेरा रक्षा करते हैं, या भक्त की इच्छा है कि मेरी रक्षा करें, तो भगवान और आनंद लेते हैं, हंसते मन ही मन, मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ, और इन्हें लग रहा है कि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है भक्तों का, ये भगवान को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वहां नंद बाबा, यशोदा, ये भी अष्टवसु में है, और वो भी चाहते हैं कि हम भगवान की बाल लीलाओं को देखें। इसीलिए भगवान जानबूझकर छोटे बालक के रूप में नंद बाबा के पास आते हैं। नंद बाबा उन्हें स्वागत करते हैं। वैसे बच्चे के स्वरूप में भगवान वहां प्रकट हो गए हैं, लेकिन योग माया के कारण किसी को दिख नहीं रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि ये बच्चा आया है और यहाँ 11 वर्ष तक रहा है। वैसे वृंदावनम पदम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन को कभी छोड़ूंगा नहीं, भगवान ने प्रतिज्ञा लिया हुआ है। अप्रकट स्वरूप में भगवान वृंदावन में हमेशा रहते हैं। तो फिर कौन आते हैं भगवान को ले जाने के लिए? अक्रूर आते हैं। तब अक्रूर के पास कौन जाते हैं? वही चतुर्भुज वाले नारायण जाते हैं। तो कृष्ण, स्वयं कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़े नहीं। बालक के स्वरूप में, छोटे बच्चे के स्वरूप में माता पिता के साथ वात्सल्य का आदान प्रदान हो रहा है। तो वात्सल्यता जो है ये देवकी के अंदर भी है। वसुदेव से देवकी, वसुदेव की पत्नी के अंदर भी वात्सल्यता है, वसुदेव के पास भी वात्सल्यता है, यही भाव है। नंद बाबा, यशोदा का भी वात्सल्यता है, लेकिन दोनों वात्सल्यता में थोड़ा सा अंतर है। एक ज्ञान युक्त वात्सल्य है, एक विशुद्ध वात्सल्य है। इस विशुद्ध वात्सल्य में और भी प्रेम अगाध हो जाता है, और प्रेम और बढ़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि मेरा बच्चा भगवान है। कहते हैं हर रस पूर्णता प्राप्त करता है वृंदावन में।
भगवान इस रस का पूरा आस्ते हैं वृंदावन में, पूर्णता प्राप्त करता है, परफेक्शन। एवरी रसा रीचेस परफेक्शन इन वृंदावन। वैसे वैकुंठ में एक गोप कुमार जाते हैं, भगवान के एक सखा है गोप कुमार। जब वहां जाते हैं तब वो देख रहे हैं कि यहाँ तो मेरे कृष्ण नारायण स्वरूप में लेटे हुए हैं शेषनाग के यहाँ, अनंत शेष में। और ये क्या है, शंख चक्र सब धारण करके खड़े लेटे हुए हैं। इनके पास वैसे तो मेरे कृष्ण ही हैं, लेकिन कैसे जाऊं उनके पास? कहाँ गया मेरा कृष्ण जो त्रिभंगी स्वरूप में खड़ा रहता है, जो गैयों को चराता है, जो मोर पंख पहना हुआ है? ये क्या है? ये तो पूरे क्राउन को पहन के बैठे हैं, मुकुट बोलते हैं, क्राउन को पहने। लग तो रहे मेरे कृष्ण, नहीं कहीं ना कहीं मुझे उस कृष्ण की कमी एहसास हो रही, उस कृष्ण की कमी एहसास हो रही। कौन सी कृष्ण की कमी? वो कृष्ण जो घर का कृष्ण है। जैसे आप अगर ऑफिस में जाएंगे तो आपके ही पिताजी वहां जज रहेंगे, तो उनके जज के ऑफिस में जाकर आप उनकी गोदी में जाकर नहीं बैठ सकते, वो रस का आस्वादन नहीं ले सकते। वैसे ही वैकुंठ में कृष्ण अपने भक्तों के साथ वो रसास्वादन नहीं कर पाते हैं जो वो वृंदावन में करते हैं, गोकुल में करते हैं, गोलोक में करते हैं। वही सखा है, वही कृष्ण है। नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने के कारण अब वही लक्ष्मी जी, वही राधा रानी, वही लक्ष्मी, लेकिन अब लक्ष्मी कृष्ण के शरणों में है और राधा रानी जो लक्ष्मियों के स्रोत है, वहां कृष्ण उनके शरण में है। ये है घर में कृष्ण का घर है वृंदावन। तो इस घर में किसी को ये ज्ञान नहीं कि हमारा बच्चा जो हमारा सखा है, हमारा बच्चा है, हमारा सखा है, हमारा प्रेमी है, वो भगवान है। तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां क्या कृष्ण इंगित कराना चाहते हैं कि वृंदावन जैसा कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, ब्रजवासी जैसा कोई भक्त नहीं है। क्योंकि ब्रजवासी ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी को नहीं जानते। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते हैं और कृष्ण भगवान है ये भी नहीं जानते हैं। अगर कोई कुछ समस्या है, कुछ कठिनाई है, तो सब कृष्ण के पास ही जाते हैं। इतना उनको विश्वास है कि हमारा कृष्ण हमें बचाएगा। जब कृष्ण बचाते हैं तो फिर कहते हैं हमारे नारायण ने हमें बचाया, हमने बहुत सारी पुण्य किए तो नारायण ने अब हमारे कृष्ण छोटे बालक को बचा दिया, तो कृष्ण ही हमें बचाएगा और कृष्ण को बचाने वाला हमारा नारायण है। इस प्रकार से उनका भाव है, इतना प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम की महिमा की गाथा करने के लिए स्वयं कृष्ण उद्धव को भी भेजते हैं कि जाकर देखो, वृंदावन वासियों को देखो, वहां जाकर संदेशा दो। वो संदेशा देना तो एक बहाना था, लेकिन उद्धव को कहना चाहते हैं कि वृंदावन जैसे भक्त या ब्रजवासी जैसे कोई भक्त मेरे नहीं है। तो यहाँ भगवान सबकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। भगवान ने असुरों की भी इच्छा पूर्ति की, भगवान ने वसुदेव की भी इच्छा पूर्ति की। भगवान ने वसुदेव को ऐसे लग रहा है कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, भगवान यहाँ से चले जाएं ताकि भगवान सुरक्षित रहें, तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूर्ति की। और भगवान मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो देवकी और वसुदेव का सेवा तो नहीं कर पा रहा। तो ये सब शब्द सब जो हैं उद्धव जी सोच रहे हैं। इसके पहले के बहुत सारी श्लोकों में उद्धव जी कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं मुझे कि मैं देवकी और वसुदेव का ज्यादा सेवा नहीं कर पाया, ये सब शब्द सुनकर मैं उनके प्रति और मुझे प्रेम जागृत हो जाता है कि भगवान कितने विनम्र हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान डर कर नहीं गए, बल्कि वसुदेव का जो भाव है, मैं भगवान को सुरक्षित रख रहा हूँ, सुरक्षित रखने के लिए लेके जा रहा हूँ, ये भाव को भगवान इस भाव को आनंद ले रहे हैं। जब भक्त सोचता है कि मैं भगवान को केयर करता हूँ, भगवान का सुरक्षा मैं करता हूँ, भगवान का देखभाल करता हूँ, भगवान को मैं खाना खिलाता हूँ, तो ये भगवान इस भाव को स्वीकार करते हैं।
तो 25वें श्लोक और 26वें श्लोक में किस प्रकार से भगवान पूरे जगत के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। जानबूझकर भगवान वसुदेव को प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ से मुझे ले जाओ। और फिर नंद बाबा के आंगन में, जहाँ भगवान पहले से अवतरित हो गए हैं, अब नंद बाबा के आंगन में भगवान नंद बाबा और यशोदा को 11 वर्ष तक भगवान उस आनंद को दे रहे हैं। वैसे सभी भक्तों को वहाँ आनंद मिल रहा है। अन्य अन्य रसों में इसका वर्णन किया हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रश्न? माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। साधु साधु, आपको बहुत सुंदर आपने पहले श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय हैं उनके बारे में समझाया, प्रत्येक जो स्कंद है उनके बारे में समझाया, और फिर आपने ये जो भक्तों हैं जो भगवान के प्राकट्य लीला के बारे में वर्णन करते हैं उसके बारे में समझाया, और प्रभुपाद जी का भी आपने यही बताया कि हमें उनके प्राकट्य लीला के बारे में भक्त जो है शिष्य है वो उनके बारे में बताते हैं। और आपने बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण की ये कथा की प्रभु माता जी। साधु साधु, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को। माता जी, एक जिज्ञासा ये है कि तात्पर्य में ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं उनकी जो बात सुन के भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। तो माता जी इसमें ये जो इसका थोड़ा समझने के लिए माता जी समझाएंगे कि ब्रह्मा जी जैसे देखते हैं हम क्षीर सागर में जाके वहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, तो फिर मतलब वो बाद में आगे भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं या डायरेक्टली भगवान ब्रह्मा जी का जो है प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुन के आते हैं। जैसे ये गर्भोदक्षाई विष्णु जी जैसे ब्रह्मा जी को प्रेरणा देते हैं सृष्टि करने के लिए, तो ब्रह्मा जी का प्रत्यक्ष रूप में आदान प्रदान होता है भगवान श्री कृष्ण से, या जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु से ऐसे फिर आगे जाता है? माता जी प्लीज कृपा करके समझाएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो एक जगह तात्पर्य में भगवान लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, हमें कभी भी भगवान नारायण विष्णु में भेद नहीं देखना है। अन्य अन्य कार्यों के लिए स्वयं भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बलराम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उन्हें आवाज आता है, उन्होंने देखा नहीं भगवान को, उनको घोषणा करते भगवान की मैं आने वाला हूँ, मेरे सब यदु पहले देवी देवताएं यदु कुल में जन्म लेंगे। ऐसे लग रहा है कि भगवान के पास गए हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए हैं, लेकिन बोले कौन? कृष्ण ही तो बोलेंगे ना। भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु यानी क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं। अब उन्हें कैसे आप अंतर करेंगे? कृष्ण अलग हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु अलग हैं? नहीं, उस समय कुछ कार्य करने के लिए भगवान उस स्वरूप में अवतरित होते। जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु, उनमें और कृष्ण में अंतर है। उनमें और कृष्ण में अंतर देखना ये हमारी अज्ञानता है। कोई अंतर नहीं। कर्णदक्षाई विष्णु, अंतर है? कोई अंतर नहीं। भगवान ही अन्य अन्य स्वरूपों में अवतरित होते। बलराम और कृष्ण में अंतर है। अगर भगवान को इस जगत की सृष्टि रचना है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत की, तो बलराम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक है सेवित भगवान, एक है सेवक भगवान। दोनों भी भगवान ही है। सेवा कैसा करना चाहिए, सेवक भगवान है बलराम। बलराम का ही विस्तार, क्योंकि भगवान ऐसे भगवान तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कुछ काम नहीं करते। अगर काम करना है तो अपने आप को विस्तार कर लेते।
तो संदेशा तो भगवान का ही है। क्योंकि अगर हम कहेंगे शिरोदक्षाई विष्णु ने संदेशा दिया, तो हम कृष्ण और शिरोदक्षाई विष्णु में अंतर देख रहे हैं। कोई अंतर नहीं। जैसे कोई पिताजी जज हैं ऑफिस में, तो उनका कार्य अलग है। घर का पिताजी और जज में कोई अंतर नहीं। हम जब हमारे कार्यों में और हमारे घर के कार्यों में और कार्यालय के कार्यों में अंतर नहीं, उस व्यक्ति में अंतर नहीं देखते हैं, तो भगवान में और भगवान के कार्यों में और भगवान के कार्य करने के लिए भगवान के स्वरूपों में कैसे अंतर देख सकते हैं? ठीक है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी अतिथि भक्तों को। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया है। आपने जैसे त्राण का जो एक मीनिंग बताया कि कृष्ण से विरह यही भक्तों के लिए त्राण है, बहुत ही सुंदर लगा माता जी ये वर्णन का। और जैसे आपने वात्सल्य रस, फिर वीर रस, फिर साक्ष्य रस के बारे में भी बहुत अच्छे से माता जी आप बता रहे हैं। माता जी आपने एक जातक संस्कार के बारे में बात करी थी। माता जी और भी कुछ जो संस्कार होते हैं, यदि आप उसकी भी जानकारी देंगे तो बहुत कृपा होगी माता जी। हरे कृष्णा। संस्कार हमारे 10 मिनिमम संस्कार है ना। संस्कार मिनिमम 10 संस्कार होते हैं। गर्भधान संस्कार, फिर जन्म संस्कार, उसमें जातक संस्कार होता है, अन्नप्राश, जैसे चलते चलते अन्नप्राश, विद्यारंभ संस्कार, फिर आपका लड़का है तो फिर उपनयनम संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसा करते 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 मृत्यु संस्कार लास्ट में होता है। तो संस्कार होते हैं बहुत सारे। विवाह के पहले गर्भधान संस्कार, ये सब होता ही है। श्रीमंत उत्सव संस्कार, जब गर्भवती रहती है तो श्रीमंत उत्सव संस्कार, ये संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार के बिना हम संस्कार नहीं डाल सकते बच्चों में। तो ये सब संस्कारों से हम भगवान का स्मरण करते हैं। ये नहीं कि ले लिया काट दिया नाभि, उसमें भी एक संस्कार होता है। नाभि काटने के बाद उसको एक कवच बनाते, कवच बनाकर बच्चों को पहनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। श्रीमंत उत्सव संस्कार हो गया। अन्नप्राश होता है, ठीक है। इस संस्कार का एक बुक आता है, तो पढ़ सकते हैं। जी माता जी, जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छे से आपने इसका भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। एंड थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर वैल्यूएबल एसोसिएशन विद अस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को धन्यवाद प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा आज का क्लास था आपका माता जी। मतलब बहुत बार ये सब सुना है, फिर भी आपके मुंह से सुनने के लिए बहुत नेक्टेरियन था माता जी। थैंक यू सो मच। माता जी मेरा आपने जैसे कहा कि अप्रकट रूप में भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं, तो लेकिन हम शारीरिक रूप से हमेशा वृंदावन में नहीं रह पाते भक्त, तो भक्तों को हमेशा मानसिक रूप से तो वृंदावन में रहना, मतलब हम इसे कैसे समझ सकते हैं? आपने क्या प्रश्न पूछा? माता जी हाँ, यस माता जी बोलिए बोलिए, क्या प्रश्न पूछा, वापस बोलिए। भगवान वृंदावन में हमेशा प्रकट रूप में रहते, नित्यवास में रहते हैं, लेकिन हम शारीरिक रूप से हमेशा हम नहीं रह पाते वृंदावन में। चेतना में वृंदावन में रहना है, शरीर के साथ वृंदावन में हम कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम साधक हैं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। बस श्रील प्रभुपाद ने कहा वृंदावन इज मेंट ओनली फॉर गोस्वामीज। तो वहां के जो लोकल लोग थे ना, इतना गुस्सा आ गया उनको, क्योंकि वृंदावन में हम जाकर हमारे बंगलो लगे लेते हैं, हमारे पास पैसे से हम वृंदावन में नहीं रह सकते। गोस्वामियों जैसे चेतना होना चाहिए, तब जाकर हम वृंदावन में रहने योग्य, और यो योग्यता देती हैं गोपियां। इसीलिए
एक साधक होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, वृंदावन में जाकर दंडवत प्रणाम कर 3 दिन या 4 दिन हम थोड़ा कथा श्रवण करके वापस आना चाहिए। वृंदावन में रहने के लिए योग्यता बहुत आवश्यक है, और योग्यता प्रदान करती हैं जो गोपियां हैं, जो ब्रजवासी हैं। ये मत सोचो जो वहां सब रहते हैं उन सबके पास वो योग्यता है। योग्यता होने के कारण, होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, अपनी योग्यता को समझ नहीं पा रहे। और अब तो ऐसे हो गया है, एक बाबा जी हैं जो हमेशा गोवर्धन में वास करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम पैसे से यहाँ आकर रहने का प्रयास कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी असुर भूमि बन जाएगा। एक बड़े वरिष्ठ बाबा जी। चेतना से ही हम वृंदावन में रह सकते हैं। हमारे जैसे साधक क्या कर सकते हैं, कहीं भी रहो, बंबई में भी रहो, अरब में रहो, कहीं भी रहो, हम सदैव भगवान का स्मरण करने मात्र से, रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा है ना टॉपिक, भगवान का नाम लेने मात्र से ही हम ब्रज में वास करते हैं। श्रील प्रभुपाद ब्रावरीज में जाकर क्या कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम का तात्पर्य लिख रहे हैं, टीका टिप्पणी लिख रहे हैं, तो क्या वो वृंदावन में नहीं है? हमेशा ब्रज में रहते हैं, आचार्य हमेशा ब्रज में रहते हैं, वो कहीं भी रहे भी वो ब्रज में रहते हैं। गोपी मनोहर प्रभु। ठीक है माता जी, आपका स्वागत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा सुंदर क्लास था माता जी, और बहुत अच्छे से आपने 28 श्लोक के बताया। बस एक प्रश्न था माता जी कि जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं भगवान कभी मतलब उनका नॉर्मल जन्म नहीं होता भगवान का, और लेकिन हम लोग जब देखते हैं इनका जातक संस्कार वगैरह होता है तो या देवकी माता तो गर्भवती लगती है, तो मतलब इस चीज को कैसे समझे? मतलब जनरल किसी को मतलब लोग इसीलिए वही जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान जानबूझकर ऐसे लग रहा है। जब भगवान अभी देवकी के गर्भ में बैठे हैं तो चतुर्भुज के रूप में हुए, वहां जातक सर्वनी नहीं हुआ। अब भगवान को दिखाना है कि मैं मनुष्य के रूप जैसे आया हूँ यशोदा के पास, ऐसे यशोदा का ही मैं पुत्र हूँ, ये भी दिखाना चाहता। मैं यशोदा का ही पुत्र हूँ। यशोदा ने अपना जो यश है देवकी को दिया, इसलिए उन्होंने अपना नाम देवकी से यशोदा रख लिया, उनको यशोदा बुलाने लगे। तो भगवान का जन्म दिव्य है, ऐसा लग रहा है कि भगवान प्रकट होते हैं, जातक संस्कार हो रहा है, जानबूझकर होता है, भगवान की लीला है। भगवान कराना चाहते हैं ये सब, और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं सिर्फ यशोदा का ही। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। या और किसी का कोई प्रश्न या कोई कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और नारायणी माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अपने इन्विटेशन स्वीकार किया और अपना इतना बहुमूल्य टाइम दिया माता जी। ऐसे ही रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही आते रहिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय स्पंदन की जय। हरे कृष्ण, नारायणी लक्ष्मी माता जी की जय। हरे कृष्ण।